Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. Let's empower educators and elevate education. My dear educators, here are a few worksheets that you can use for foundational stage. Yes, my dear educators, for foundational stage, that is for the Balvatika stage, for maybe you say nursery, LKG, UKG, or maybe you are talking about preschool, then KG, upper KG, and the lower KG. So, my dear educators, here are a few activity sheets. Make sure you use them as per your requirement. They cover all the topics related to languages and environmental science, like what all topics we cover. For example, the first picture is here, my picture frame. Know about yourself. And the students, they will be decorating it. They'll be drawing, right? Different organs, like they are being visible, different parts of the face. And then the next one, here it is my family photograph, right? So after that, we have got understanding self. So in these worksheets, in the first one, where we're going to talk about my family photo, the students, they'll be pasting the photo, knowing about their birthday, what do they like, their favorite color, shape, food, and a small poem about myself. Yes, I'm special. I'm special. Look at me. You will see someone very special, because it's very important to know each and every child. Yes, they all are special. They all are unique. They are all genius in their own way. And then they'll be drawing the picture or maybe pasting the picture, right? And then what is their name? They let them know how to write the name, how old they are, and whether talking about the gender, a boy or a girl, and circle the picture accordingly, mother's name, father's name, right? Guardians or the caregiver's name. And like, see how beautiful, colorful pictures are there. The lovely worksheets, they are there for your students. You can use it. I mean, then the picture composition is there. After looking at the picture, maybe they'll be able to answer a few questions and talking about the number of guests, counting. Like, see, they are observing the picture. So visual enhancement is also there. Based on that, like some numeracy activities, the skills, they are being enhanced. And here, when they are talking about find the similar objects, so these kinds of activities we do share with our nursery class students. Let them like recognize the pictures that associate with each other, that resemble each other, they are the same pictures. And then they join the dots, like completing the bird, and then matching the sense organs that you will use for each group, like talking about the different sense organs. And then here you go. Next is matching the objects for that are used for cleaning the body or maybe cleaning the school, talking about the cleanliness, awareness about the surroundings. And next, there are a few rhymes related to the sounds of the different birds and animals, right? मैं तो सो रही थी, मुझे चिड़िया ने जगाया, बोली ची ची ची. I mean, they'll be able to know the sound. So though many of the worksheets, they are available in English also, right? You know very well, we teach our students various sounds of the different animals through rhymes also. Like, oh, McDonald had a fun E-I-E-I-O on his farm. There was a pig, oink oink here and a oink oink there. I mean, हम sounds के साथ उनको familiar कराते हैं, तो इस तरीके की worksheets rhymes जो है उनके साथ में different languages में share कर सकते हैं. And the next one is, here we're gonna talk about match the feelings with the faces. They should know, like emojis we all are using. So use this worksheet to teach them different kinds of facial expressions through emojis, through gestures, through expressions, body language. So next is प्रत्येक पंक्ति में स्वस्थ भोजन पर गोला लगाइए. Talking about the healthy diet, they should know about what is good, what is healthy for our body. So हम ऐसी वर्कशीट्स बनाते हैं यूजुअली क्लासेस में. तो आपके पास अगर रेडीमेड वर्कशीट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप इनको अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज पहचानो और प्रत्येक पशु का नाम बताओ. क्या आप इन पशुओं की आवाजें निकाल सकते हो? तो जो आपने उनको पहले एक राइम दिया था, हिंदी में कविता दी थी, तो उसके बेसिस पर ये आप उनको वर्कशीट्स करवा सकते हैं. उसमें से एनिमल का रिकॉग्निशन करेंगे, उसके साउंड निकाल कर बताएंगे. इस तरीके से वर्कशीट्स को कनेक्ट करके बच्चों के साथ आप शेयर करिए, राइट? नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वन आउट. जब वो बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जब वो अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग और उनके एनहांस करने के लिए बेस्ड ऑन दैट या तो आप अपनी वर्कशीट डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो जो भी अभी तक सिखाया है बेस्ड ऑन दैट ये ऑड वन आउट की वर्कशीट उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं.
नेक्स्ट आपके पास है हम उनको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं बिग एंड स्मॉल का, डिफरेंट कलर्स का, तो डिफरेंट शेप्स, ये हम उनके साथ में शेयर करते हैं। तो ऑलरेडी आपके साथ यहाँ पर वर्कशीट्स आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो ये वर्कशीट हमने उनके साथ पहले शेयर की है। एंड नेक्स्ट इज थिंग्स आई डू बिफोर गोइंग टू स्कूल, क्या क्या करते हैं, राइट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, टॉक अबाउट दैट, डिस्क्राइब द एक्शंस यूज्ड इन ईच पिक्चर। तो एक्शन वर्ड उनको सिखाते हैं ना, बेदिंग or maybe eating, waking up, right, going to school. So such kinds of activities can be discussed with the students. Next is talking about my favorite food, right? What does the poem talk about? Why, what is hanging on the tree, right? रोटी अगर पेड़ पर लगती तोड़ तोड़ कर खाते तो पापा क्यों गेहूं लाते और उसे पिसवाते। सी अगर हर एक चीज में हम देखिए फार्म टू टेबल की हम एक्टिविटी भी इसमें करवा सकते हैं कि कैसे गेहूं से हम रोटी की बात कर रहे हैं, क्या रोटी पकी पकाई लगती है या उसको बनाना पड़ता है, उसमें डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं, राइट। तो वो इस तरीके से एक अलग तरीके से बच्चों के साथ पोएम शेयर की गई है। नेक्स्ट इज हेल्प सिया इन कलरिंग द शेप्स, राइट, फाइंडिंग द शेप्स एंड कलरिंग अप्रोप्रिएटली। ये बच्चों के साथ हम शेयर करते हैं यूजली वर्कशीट, तो ये आप बच्चों को करवा सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास टिक फॉर सेफ एंड क्रॉस फॉर अनसेफ, तो ये आप बच्चों के साथ वर्कशीट शुरू शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड एंड सर्कल द डिफरेंसेस। सी सच वर्कशीट्स वी हैव बीन शेयरिंग विद आवर चिल्ड्रन, बट एटलीस्ट यू विल हैव अ वैरायटी ऑफ द वर्कशीट्स, राइट। एंड देन इसमें और क्या क्या है, पैटर्न्स हैं, लेट्स सी, क्रिएट समथिंग विद द शेप्स, राइट। हम क्रिएशन लेवल तक बच्चों को लेकर आते हैं। ऑल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ये सारी इससे रिलेटेड वर्कशीट्स हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों में भी हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंगली वर्कशीट्स जो है उनके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके की वर्कशीट्स हैं। अब उनको हम क्रिएशन लेवल तक लेकर आए हैं कि शेप से उनको अपनी तरफ से कुछ भी वो क्रिएट करना चाहे जो उनको ठीक लगे। एंड देन क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ योर चाइल्ड फ्रॉम द सर्कल्स, दिस इज ऑल ऑल्सो क्रिएशन लेवल, कि एक हमने सन बनाया है, आप क्या क्या बनाना चाहते हैं। तो हर बच्चे को अपने हिसाब से बनाने के लिए दीजिए, ये नहीं कि आप बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे कि इसमें आपको चांद बनाना है, इसमें आपको रोटी बनानी है, इसमें आपको पैसा बनाना है या इमोजी बनाना है। नहीं, उनको जो भी अच्छा लगे, लेट देम कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज। And next is Sia, Rahul and Amandeep. They're playing with their favorite toys, and there are different toys present at their home. And how many toys can you see in the picture? ये all सारा picture का analysis है, कितने आपको toys दिख रहे हैं, कितना उनका number है, right? And what do you keep? Where do you keep your toys after you have finished playing with them? कहाँ रखते हैं, बिखेर कर रखते हैं, समेट कर रखते हैं। तो ये ऐसी जो हमारी रियल लाइफ इंटीग्रेशन या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये देखिए सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ में शेयर किए गए हैं। नेक्स्ट इज मेकिंग कोलाज। कोलाज किसके रिलेटेड इन्होंने कहा है, कोलाज पिक्चर्स रिलेटेड टू द बॉडी हाइजीन, क्लीनलीनेस फ्रॉम द न्यूज़पेपर में से देखिए कितनी एड्स आती हैं, एडवर्टीजमेंट्स कितनी आती हैं, तो उससे रिलेटेड दे कैन कट द पिक्चर्स लाइक अपने क्लीनिंग अवर हेयर, फेस, बॉडी, आई मीन उससे रिलेटेड जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको काट कर पिक्चर लगा सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज की लगा सकते हैं। एंड देन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ईच एनिमल एंड सिंग द राइम। ये देखिए अभी हमारा कैसे कनेक्शन चल रहा है, हमने हिंदी में भी बच्चों को ये सेम चीज सिखाई है, अब इंग्लिश में भी बच्चों को सेम यही चींची सिखाया, तो यहाँ चर्प चर्प सेज द बर्ड करके सिखा रहे हैं। तो दे विल बी एबल टू कनेक्ट कि हाँ बोथ द लैंग्वेजेस कैसे एक साथ साथ वो पैरेलल उनको चलाते हैं। नेक्स्ट इज लय आत्मक शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स हम बच्चों को जैसे सिखाते हैं, तो यहाँ पर हिंदी में राइमिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं। इफ द नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर दे राइम, कलर द विद दैट हैप्पी फेस, एंड इफ दे डोंट राइम देन कलर विद द सैड फेस। तो क्या है कि ऑब्जर्व करने के बाद उनका क्या रिएक्शन आता है, तो काफी इनोवेटिव एक्टिविटीज हैं इसमें। एंड ड्रॉ एनी टू पिक्चर्स विद राइमिंग नेम्स इन द गिवन बॉक्स। हमेशा हम राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए ही उनको बोलते हैं, तो हम राइमिंग वर्ड से रिलेटेड पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए भी उनको कह सकते हैं, जैसा भी वो बनाना चाहे। डोंट बी जजमेंटल कि कैसा बनाया है बच्चे ने। नेक्स्ट इज एनसर्कल 10 रोटीज एंड देन एनसर्कल 6 स्टार्स। आई मीन काउंटिंग जो हम आई गेस 10 तक काउंटिंग छोटे छोटे बच्चों के लिए है। एंड देन ये आपके पास गिवन मेज है, ये हम बच्चों को देते हैं, काफी इंटरेस्ट से बच्चे इन एक्टिविटीज को करते हैं। इवन दे कीप ऑन फाइंडिंग द सेम इन द न्यूज़पेपर एज वेल, इन द मैगजीन्स, जो छोटे छोटे बच्चों की मैगजीन आती हैं उसमें भी वो सब कुछ इसको एंजॉय करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज को। बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट है, और अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट, राइट। कि अब 3 है, 3 में से क्या आएगा, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट की वो बात करेंगे। एंड देन पैटर्न है, पैटर्न से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं इसमें। एंड देन काउंट द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फॉर
ये उनका पाथ देखेंगे, कौन से पाथ पर जाकर उनको कितने ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, कहाँ पर जाकर कैसे करना है। ड्रॉ अ लाइन इन द गिवन पाथ एंड मैच विद द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द करेक्ट काउंटिंग, राइट। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इधर 3 है तो 3 के साथ ही उनको जाकर मैच करना है, वही रास्ता, वही रोड उनको चूज करना है, राइट। तो ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ वर्कशीट्स हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं, बच्चों के साथ आप जरूर शेयर करिए, वो सच में एंजॉय करेंगे इन सब एक्टिविटीज को। लाइक ड्रॉ एंड कलर द सर्कल एज पर द गिवन नंबर। ओ हंग्री कैटरपिलर, जैसे हम बच्चों को एक राइम सिखाते हैं ना, डे 1 में संडे को ये खाया, मंडे को ये खाया, और अब संडे मंडे करके हम बच्चों को पूरे डेज ऑफ द वीक पढ़ाते हैं, राइट। फिर पेट दर्द हो गया, संडे को क्या किया, समथिंग लाइक दैट। तो ये अब कैटरपिलर की जो बॉडी के जो सर्कल्स वो बच्चे बनाएंगे, उसके बॉडी के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स रादर आई वुड लाइक टू से, तो वो उतने बनाएंगे जितने आपके पास इधर नंबर लिखा हुआ है। तो ये आप 10 तक काउंटिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से करा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज नरेट द स्टोरी टू द चिल्ड्रन बाय शोइंग ईच स्टोरी कार्ड। डिफरेंट स्टोरी कार्ड्स आप बच्चों को दिखाएंगे, उनसे पूछिए कि हर एक में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, देन आस्क देम टू अरेंज इट अकॉर्डिंगली, राइट। नेक्स्ट इज अनदर स्टोरी इज आल्सो देयर, राइट। एंड ये हम देखते थे ना, एक स्टोरी छोटे होते, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई, ठीक है, पर वो शिकारी आया, जाल बनाया, और फिर कैसे क्या फुर 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 पूरा जाल लेकर उड़ गई। बहुत ही अच्छी एक कविता थी जो दूरदर्शन पर आया करती थी, बहुत ही सुंदर, हम सबने इंजॉय किया है वो टाइम, राइट। तो उस तरीके से बच्चों के साथ आप शेयर करिए ऐसी मॉरल स्टोरीज। एंड देन आइडेंटिफाई एंड नेम द बिग मीडियम एंड स्मॉल पिक्चर्स। देखिए हम अब पहले हम बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट कराया, फिर बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का, और हम बिग मीडियम और स्मॉल की तरफ धीरे 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 उनके प्रोग्रेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, राइट। एंड देन सी पेस बिग एंड स्मॉल शेप्स इन दिस बॉक्स, और उसके बाद आपका रेड फोर्ट आ गया है। आप कुछ हम देखिए, अगर हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं तो सिर्फ न्यूमरेसी या लैंग्वेज का नहीं उनको बता रहे हैं, वी गोना टॉक अबाउट ऑल अवेयरनेस, राइट। तो उनको 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। हमारे जो नेशनल डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, लाल किला है, इंडिया गेट है, ये और भी सारी जितनी भी है उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, तिरंगे के बारे में, ट्राई कलर के बारे में। तो ये सब एक्टिविटीज हम बच्चों को कराते हैं। नेक्स्ट इज काइंडनेस फॉर others. This is again recite the poem given below. और उसके बाद में नीचे क्या एक्टिविटी है, ड्रॉ अ फिश हियर और मेक अ फिश बाय पेपर फोल्डिंग, ओरिगेमी की एक्टिविटीज भी हैं इसमें। एंड देन एनसर्कल द हेल्दी फूड्स इन ईच रो। आप हेल्दी फूड की एक्टिविटी पहले भी आई थी। एंड देन एट द प्लेग्राउंड like talk about what is happening in the picture, क्या सही है क्या गलत है, बच्चे क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। बच्चों से पूछे कि वो अपने लाइफ के बारे में बताएं कि वो डेली कैसे पार्क में जब जाते हैं टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, उनके फ्रेंड्स कौन से हैं, कौन सी वो गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो एटलीस्ट वो अपने बारे में थोड़ा बताना शुरू करेंगे इन वट एवर लैंग्वेज दे वुड लाइक टू शेयर, राइट। ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही बताना है या हिंदी में बताना है, अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी वो शेयर कर सकते हैं, जिस तरीके से भी एटलीस्ट वो दे विल बी एक्सप्रेसिव इन दैट। एंड देन आस्क क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। क्या है, जैसे मैं अभी आपको मैंने बोला है कि व्हाट गेम्स दे आर प्लेइंग, व्हाट डू यू थिंक द बीज, व्हाई द बीज आर फ्लाइंग नियर द फ्लावर्स, क्यों वहां पर जा रही हैं, व्हिच गेम वुड यू लाइक टू प्ले इफ यू विजिट द प्लेग्राउंड। एंड if two or more children they join and the sand play, how many children will be there, right। and then मतलब इतने बच्चे खेल रहे हैं सैंड में, उसमें 2 बच्चे और आ जाएंगे या 3 और आ जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा। तो इस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस उनको पूछिए। इफ वन चाइल्ड गेट्स ऑफ फ्रॉम द स्विंग एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट, 3 है, एक निकल गया, तो कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट उनको पिक्चर्स के थ्रू ही बताइए, या उनको बताइए कि अब इसको ड्रॉ करके बताइए एक उतर गया तो कितने रह गए हैं, या वैसे उनसे जैसे भी जिस तरीके से बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड देन ड्रॉ द पार्क हियर दैट यू वुड लाइक टू विजिट एंड प्ले। अपने आसपास के जो पार्क है उसके पिक्चर बनाएंगे। एंड देन मीना एंड रवि इज टॉकिंग अबाउट 10 बलून्स। 10 तक की काउंटिंग ही हम अभी शुरू में कर रहे हैं, ठीक है। कलर्स के बारे में बताएंगे, टच करेंगे, काउंट करेंगे, राइट। उनको स्ट्रिंग ड्रॉ करके उन बच्चों को इक्वली डिवाइड करके देंगे, चाहे इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं या किसी को ज्यादा देना चाहते हैं, कैसे कैसे करना चाहते हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, राइट।
And then how many coaches can you see in the train, and then color the different coaches. इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं कि कितना नंबर है उतने उसके कोच बनाओ, जैसे हमने कैटरपिलर वाली एक्टिविटी की थी. Encourage a child to draw the objects in the box and color them. Discuss how each of these objects are used for self care, hygiene के लिए कैसे कैसे यूज होते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो उसको ड्रॉ करेंगे. एंड देन व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, पिक्चर में क्या देख रहे हैं, ये सारा आपको पता है कि ट्रैफिक से रिलेटेड, रोड सेफ्टी से रिलेटेड पिक्चर है. हम बड़े बच्चों में भी ये एक्टिविटीज कराते हैं. एवरी ईयर वी गो हैड विद द रोड अवेयरनेस प्रोग्राम. तो आप उस तरीके की वर्कशीट बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं. दे विल बी आल्सो फेमिलियर विद टू व्हीलर्स कौन से हैं, थ्री व्हीलर कौन से हैं, फोर व्हीलर्स कौन से हैं. एंड देन क्लीन बॉडी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हेयर को कैसे करते हैं, हैंड्स को कैसे करते हैं. इसकी एक एक्टिविटी हमने पहले भी किया था कि न्यूज़पेपर और मैगजीन में से कटिंग करके बनाएंगे. आप दो वर्कशीट्स को आप रिलेट करके भी उनको करा सकते हैं कि वो भी करें और ये भी करें, या एक रिकैपिचुलेट करने के लिए एक हफ्ते के बाद में उनको एक अलग वर्कशीट दे सकते हैं बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ताकि उनके पहले के पढ़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएं. और यहाँ पर क्या लिखेंगे, थिंग्स आई सी, थिंग्स आई हियर, थिंग्स आई टच, थिंग्स आई स्मेल, आई टेस्ट. तो ऑल रिलेटेड टू सेंसेस. ठीक है, अब जल्दी जल्दी सारी वर्कशीट्स हम फटाफट से देख लेते हैं. आपको ज्यादा पता है, बच्चों के साथ आप वर्कशीट्स में डील करते रहते हैं, राइट. मैं सिर्फ क्विकली आपको दिखा दूंगी, कहीं पर कुछ होगा तो आई विल बी एबल टू गिव माय इनपुट्स. पैटर्न्स जो है हम फ्रूट्स के साथ कर रहे हैं, किसी भी चीज का पैटर्न में राइटिंग बच्चों को बताते हैं, पैटर्न ड्राइंग बच्चों को बताते हैं. एंड देन काउंटिंग की वर्कशीट है. ये हमारे पास क्या है कि ग वाले चित्र ढूंढो. ये हम जो बच्चों को कराते हैं, फर्स्ट लेटर, वो ध्वनि, वो साउंड से अकॉर्डिंगली वो पिक्चर ढूंढे, उनको वो कलर करें, उसके बारे में बताएं. या आप दो बनाकर बच्चों को ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हैं. और ये हमारे पास क्या है, मैच द शेप्स ऑन द ड्रेसेस, कि उनकी ड्रेसेस पर हमारे कितने पैटर्न्स होते हैं. तो रियल लाइफ के साथ इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं बच्चे. आप बच्चों को भी कह सकते हैं एक दिन की यूनिफॉर्म की जगह पर आप अपने घर से कोई ऐसी टी शर्ट आप ऐसा ड्रेस, ऐसी फ्रॉक पहन कर आइए जिस पर कोई पैटर्न बने हो. तो वो बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी होगा अगर उनको इस तरीके से हम बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ हमेशा ड्रॉ करके देखते रहें. वो खुद भी ऐसे कपड़े पहन के आए, राइट. कुछ भी अगर कपड़े पहन के आना चाहते हैं, कोई स्कार्फ लेकर आना चाहते हैं, कोई हैंकरचीफ लेकर आना चाहते हैं जिसपे वो पैटर्न बना है, तो दे कैन शो द सेम इन द क्लास ऑल्सो, राइट. तो पैटर्न आप इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, राइट. एंड देन अगेन द राइम इज देयर, coloring can be done, and then based on that then they'll be look at the picture and name the bird and say the initial sound. हम sounds के through बच्चों को पढ़ाते हैं. initial sound of the name of each bird ये आपको बताएंगे, और first letter लिखेंगे भी अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो. and then measure heights in their own way. सी कितनी अच्छी एक्टिविटीज है, कितने स्क्वायर टॉल है जिराफ, राइट. तो उसके अकॉर्डिंगली वो ग्राफ बनाएंगे. हाउ मेनी ब्लॉक्स लॉन्ग इन ईच ट्रांसपोर्ट, कलर दीज ब्लॉक्स एंड राइट द नंबर इन द गिवन बॉक्स, उसमें लिखेंगे, राइट. कितने ब्लॉक्स हैं, लॉन्ग है ट्रांसपोर्ट ना, वो कितने कहाँ तक कवर कर रहा है, 2 को कवर कर रहा है, ये बोट 4 को कवर कर रही है, राइट. एंड ये ट्रेन है 5 को कवर कर रही है, टोंगा 3 ब्लॉक्स को कवर कर रहा है. तो ये दोनों जो वर्कशीट्स हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं. अगेन मैंने आपको जो बताया था उसके बारे में, रेड फोर्ट के बारे में, अब हमारा इंडिया गेट आ गया है, 15 अगस्त से रिलेटेड एक्टिविटी करवा सकते हैं, रिपब्लिक डे से रिलेटेड एक्टिविटी करा सकते हैं, वैसे भी स्टूडेंट्स को अवेयर करा सकते हैं. एंड देन फाइंडिंग द टॉयज, ज्वाइनिंग द लाइंस विद देम, एंड देन केयर एंड हाइजीन चार्ट. देखिए हाइजीन की हमारी 3rd वर्कशीट आ रही है अभी ये. and then tracing the lines and count and write, and the numbers are also there. then concept है हमारे पास जीरो का. बहुत बार बच्चों को जीरो का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो उसके रिलेटेड कितनी अच्छी वर्कशीट्स है, देखिए यहाँ पर दी गई है. एंड देन दे आर प्लेइंग विद द नंबर्स, एडिशन है हमारे पास. देन साउंड से फर्स्ट लेटर की वर्कशीट है. जिस ध्वनि से चित्र का नाम शुरू होता है उस पर गोला लगाइए. एंड देन हमारे पास पैटर्न है, वेजिटेबल एडिशन है, और हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, ज्वाइनिंग द डॉट्स है. एंड देन हमारे पास क्या है, ये वर्कशीट किससे रिलेटेड है, अगेन इट इज रिलेटेड टू व्हाट, हाइजीन है ना. साबुन है, क ख ग सारा, वो हिंदी की एक वर्कशीट भी बना दी है, बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं, कलरिंग भी कर रहे हैं. एंड दे टॉकिंग अबाउट हाइजीन ऑल्सो. हैंड वॉशिंग डे भी होता है, उसके रिलेटेड आप ये एक्टिविटी भी करवा सकते हैं. एंड देन अगेन वेजिटेबल काउंटिंग है हमारे पास. बिगनिंग लेटर साउंड्स है, माई कलरफुल पजल, like look at the colorful boxes, now color the shapes given below using the same color. तो उनको थोड़ा रिकॉग्निशन आएगा किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न बना है, ऊपर पैटर्न कैसे है, तो they'll be able to color the same. नेक्स्ट हमारे पास है
माई फैमिली की एक्टिविटी, माई हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी। अगेन ये हमारी अगेन हाइट भी कैसे मेजर करते हैं, ऐसे हमारे 2 वर्कशीट्स पहले कर चुके हैं। एंड हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर, देन दे विल बी काउंटिंग। पैटर्न काउंटिंग है, शेप्स इन माई हाउस है, सर्कल द ऑड वन आउट। फैमिली पिकनिक, फैमिली पिकनिक पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बच्चों से पूछिए, राइट? जैसे पिक्चर का एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो वेरियस क्वेश्चंस आर देयर। मैच द शेडो से रिलेटेड है, मे बी आई स्पाई एनिमल्स, कौन से एनिमल्स उनको फाइंड करने हैं, राइट? एंड देन हेल्प द कैट टू रीच द माउस, ये वाली एक्टिविटी हम करवाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। लाल बिंदु से मिलान करना शुरू कीजिए। और ये रही आपकी गेम, बोर्ड गेम, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बच्चों को खिलाइए, राइट? इसको बड़ा सा प्रिंट करके लैमिनेट करिए और बच्चों के साथ खेलिए। दिस इज ऑल रिलेटेड टू, अगेन आई गेस समवेयर इट इज रिलेटेड टू हाइजीन, ऑल गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स के बारे में। एंड इज द लास्ट वर्कशीट, ये कट आउट करके लगाएंगे, मास्क बनाएंगे, एंड दे विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो माय डियर एजुकेटर्स, आई होप you have enjoyed knowing about these wonderful worksheets, and make sure you use them in your classes for your foundational stage, right? आपके फाउंडेशन और एलकेजी के बच्चे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। Stay tuned for more only at Mentoring the Mentors. Thank you. Have a nice day. Like, subscribe and share.